advisory faculty member and info वाला I, Divya Kapoor, assistant professor in the Department of Journalism and Mass Communication, welcome you all to Lily Varghese lecture series. वो हटाएंगे ना ग्रेड्स I feel ecstatic to extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Mr. Amish Devgar. Visual index. Will be speaking on nationalism and journalism. We are indeed honored to have you amongst us, sir. Hereon, I would like to give a brief introduction about our chief guest, who is a renowned media personality. A veteran in the media industry, Mr. Amish Devgan is currently associated with Network 18 News as executive editor. He is known as a credible face of television. One of the most respected journalists, he has worked with some of the leading news brands like Zee News, Hindustan Times, to name a few. His major forte has been in the realm of business reporting, but he has also covered extensively the political issues in the country. He is the recipient of Shrishti Award for Business Journalism and also won the IMF Young Emerging Editors Award in 2015. Because of his immense contribution in Zee Business, the channel bagged the award for the Best Business Channel of the Year 2015 from the Exchange for Media News Broadcasting Awards and also received the Power Brand 2016 Trendsetter Award. He hosts a daily debate show, Our Par, on News 18, along with another daily debate show, Takkar, on CNBC Awaaz. We again wholeheartedly welcome you, sir, to DME. To felicitate our chief guest, may I request our Director General, Honorable Mr. Justice Bhavar Singh, sir, to kindly do the honors. Thank you, sir. Taking this event forward, may I request our advisory board member from the Department of Journalism and Mass Communication, Professor Dr. Amrish Saxena, sir, to kindly give his address. Professor Bhavar Singh, Mr. Amish Devgan, dear colleagues and students. So keeping the tradition of BG Varghese lecture series, so today we have Amish Devgan with us. And in earlier lectures also number of senior journalists have come who had spoken on different issues which are pertinent in the present day time, but particularly the topic that Mr. Amish Devgan has chosen, which is nationalism and journalism, is considered the most hot topic in today's time, particularly the way the journalism has been moving. And there are a lot of such issues which are always debated in journalism, and the kind of things that we witnessed during the last 3 years or 4 years or 5 years, drastic changes have happened in journalism. And particularly we talk about the television channels. And opinions are very sharply divided between one channel and another channel, or between one newspaper and another newspaper. Though if you look at any news development that happens on a day-to-day basis, there can always be more than one opinion. So if you look at any development from that perspective, there's nothing wrong in that. That if on the same issue there is one opinion which is expressed or which is propagated by one channel, as compared to another channel which would have analyzed or interpreted the whole thing in a different way. But then the way the campaign journalism has started, the advocacy has started, the way the very strong lines are taken, so that is something which is really, really something which has to be thought of. And we need to discuss and deliberate as to whatever is happening is actually on the right lines, whether it will actually help in the growth of journalism in the country, whether it will actually benefit the society. So there are a lot of such issues which need to be discussed and deliberated.
In one way, I think this is not a very bad thing wherein if we are discussing such things, because a lot of people raises eyebrows that why this is happening and this should not have happened. I don't believe in any such thing, because if something is happening, the best thing is to discuss and deliberate that thing. And in a democracy, if there is more transparency, if there is more debate, that will ultimately help the democracy. So there is nothing wrong in that. And the recent thing which everybody is referring to, the case that happened in the Supreme Court, the issues which were raised by 4 judges, or if we look into the present today's development, like Praveen Togodia's case, we look at the way, I mean, the things are being reported by the media, or the way the things are being portrayed or presented, and also the way the media might be playing in the hands of certain people who want to project themselves in a certain fashion and who are trying to make use of the media. So there are a lot of such issues which we need to look at, and I believe that Mr. Amish Devgan will be referring to many such cases, particularly as he will talk about the nationalism issue, wherein the relations, India's relations with Pakistan, or India's relations with China, because that again is a big news if we look into the yesterday's development, wherein in the action of the Indian Army, seven jawans of Pakistani army, which also include a major, have died. So casualties are happening from both the sides. So what kind of reporting should be done? How the national perspective has to be imbibed in the whole reporting and all. So all these issues are very, very important to look at. So I believe that there will be a discussion and debate on this, and you all will be participant in that, wherein you can raise certain issues and wherein you can put up questions to Mr. Dev. So thank you all. Thank you so much, sir. Now I feel delighted to extend a warm welcome to our Director General, sir, to speak a few words. The chief guest, Mr. Amish Devgan. Till now we have known only Ajay Devgan, but I was very glad to meet Mr. Amish Devgan, a very friendly and frank person, a very good journalist. And we need journalists like him, who should be frank and fearless. As for a judge, it is said that he should be frank, bold, and fearless. Likewise, the journalist should be. And Mr. Amish Devgan comes alive to this test of journalism. Dr. Amrish Saxena, Madam Sushmita Wala, Dr. Parul Mehta, our faculty members, dear students, ladies and gentlemen. Indeed, nationalism and journalism are very good subjects to be debated, particularly at this hour of crisis going across our country. The crisis prevailing in the judiciary is the latest, and at this time we should really talk of harmony. And when we read in the morning that it is healthy to have differences between educated persons, but it is better to have good harmony in people who are expected by the society, by our community, to maintain good relationship amongst themselves.
because ultimately it is not the interest of a judge or four judges or the Chief Justice of India, but it is the interest of the society at large, particularly the litigant society, whose interest is likely to be jeopardized if judges would have differences in the press. But many brains and many minds and many brains and many more differences. So I was also on a news channel, and without criticizing the Chief Justice of India, I supported the cause of the four judges because they aired their grievances before whom? Before Amish Devgan. Why? Because today, even the Supreme Court has observed, just listen carefully, even the Supreme Court has observed not once but many times that journalism is the fourth pillar of democracy. And who are the three? Legislative, executive, and the judiciary. I'm glad you appear to be the students of law more than the journalists, because it is the jurisdiction of the law students to know more law. But even the journalists who are not law graduates know more laws. If we talk of Arnab Goswami, he had a very extensive knowledge of the Constitution, and likewise our Amish Devgan. He is also a very brilliant journalist, knowing everything of law. He can discuss, he can argue with judges, he can argue with lawyers, and only don't argue with two persons, your wife and your spouse, and a pleader, an advocate. Argue with anyone else. So, we have been discussing nationalism in the backdrop of terrorism, in the backdrop of our Kashmir problem prevailing for the last 7 decades by now. And we really need to maintain harmony. The people must not derive advantage of our differences. We as a judge, we as journalists, we as legislators or the parliamentarians, we should always talk in the interest of the nation. There is one provision in our Constitution, Article 142, that Supreme Court can do and pass any order if it is in the interest of the society, if it is in the interest of the public. It can pass any order. It can keep in jail a person without having committed an offense. See what a great power. Sara Subrata Roy would not have been kept in jail for more than 2 years just because he did not follow the SEBI norms. But he has not committed any offense. He is still in the interest of the public at large. The Supreme Court detained him in Tihar jail for more than 2 years. This is the power of the Supreme Court. Should such a Supreme Court have any differences where the interest of the nation can be staked at? No, never. But it is good if we discuss our differences. It is better if we discuss internally. But it is not something bad or something negative if we discuss it along with the press. Because they will invite debate, they will discuss. For the last 4 days they have been discussing. And everyone is saying, including myself,
that it is good in the interest of the nation, in the interest of the democracy. Our interest, our community's interest will be jeopardized. Because every other wing of the government will derive advantage of these kind of differences. But as I say, and I support, that there was no alternative left for the four judges who had some grievances. Maybe their grievances were not justified. Maybe their grievances were justified. We need not enter that debate. But the nationalism, the interest of the nation requires that we should maintain harmony at every level. And we need honest judges. Likewise, we need honest legislators. I remember 20, 30 years back, there was a controversy that parliamentarians have been asking questions on being paid by the business establishments or some individuals a huge sums. They would ask the question, and the government was embarrassed. But it is always that the democracy, if has to be saved, has to be protected, then transparency must be there, honesty must be there, and integrity must be there. Only those nations have been able to survive with success whose morality level, whose standards of ethics and ethical principles are greater than others. Friends, a good journalist, to be a good nationalist, must always be honest. Must depict what is the real picture prevailing in the society. If he or she builds up her own picture, I came to know a few months and maybe more than 2 years by now, that a newspaper published in newspaper that the girls and the faculty members, female faculty members of a college are engaged in corruption. The girls and faculty members raised a flag against that newspaper, and through Chairman Women Commission asked the press to give the examples. They kept silence, but when the chairman of the Women Commission forced them, either you give the explanation or face the music, you will have to face the consequences. Then the newspaper had drawn totally a flag. There was no proof. It was a mangadant story, manufactured and cooked up story by that chap. It is indeed spoil the morality of our society, the ethical values prevailing in our society. So, a journalist, be it a print media journalist or a TV journalist, must be true to his profession. He must be a true nationalist. He must depict the stories as they are prevailing, as the stories are close to reality. Reality and honesty and a fact, they are the backbone of any depiction. If our journalists depict that Kashmir is burning, then things will turn in a different situation. If journalists and the entire journalism world says in India that the army is committing atrocities, the consequences may not be that of nationalism. But if we say that yes, they are doing their job, in some cases a bit of encroachment over the fundamental rights of the society, certainly it would be justified. So, in order to be true nationalist, I heard this morning Baba Ramdev making advertisement of his products. He was pleading for
Patanjali noodles or Patanjali Maggies, and he felt proud of his products. It was good to hear it, and better when I heard that it is all in national interest. Baba Ramdev has been advertising his products. It is in the national interest. He says that we want that our society should flourish. Our general public must oppose the foreign products, and he named even some companies. I must not do that. But maybe he is correct to a certain extent. But he is talking of nationalists. If he is teaching us yoga, then he talks of health and national health, the children health, the women power, and all that. So, if a yogachari has been discussing nationalism, why not we? We owe an obligation to maintain nationalism, to follow it, to do things which are in the interest of our nation, of our society, and ultimately the democracy. Thank you, my dear boys and girls. Give you the better story of the journalism and entertain you with the anecdotes, the journalism, the profession of journalism, the true standards of this profession. Thank you. Thank you so much, sir, for your words. Now, the much-awaited moment has finally arrived, and it will be a pleasure for all of us to listen to Mr. Amish Devgan and his words of wisdom on the topic of nationalism and journalism. Can we have a huge round of applause? थैंक यू। जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो एक न्यूज़ चल रही थी, और वो न्यूज़ चल रही थी एक विषय के बारे में क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड था। और जैसा अभी बोला गया कि लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा एक पिलर है डेमोक्रेसी का, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक विधायक जो था वो एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, और जब वो उस टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था तो उसकी बातों में ये कहने की कोशिश थी कि हमारी फौज ने यानी इंडियन आर्मी ने वहां पर जो कुछ करा है ये उसकी बदौलत है, ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। और भी उसने कई सारी बातें बोली जो मुझे रेलेवेंट नहीं लगती थी बताने के लिए। तो तब मुझे लगा कि मैंने बहुत सही टॉपिक चुना है आज आप लोगों से बात करने के लिए। और ये बात मैंने सबको शुक्रिया अदा करने से पहले इसीलिए बोली अभी, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, और अगले 30 से 40 सेकंड आप इस विषय के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि मैं एक सवाल के साथ फिर आपके पास आ रहा हूँ। जस्टिस भवर सिंह साहब, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर पारुल मेहता, डॉक्टर अमरीश सक्सेना। और मैं डॉक्टर अमरीश सक्सेना को आज से नहीं 16-17 सालों से जानता हूँ। ये वही टीचर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो आई रियली ओwe हिम अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मैम, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है, खासतौर पे हिंदी जर्नलिज्म के बारे में। तो हो सकता है कुछ अच्छे काम करता हूँ वो इनकी बदौलत है, और जो कुछ गलत कर देता हूँ वो मेरी अपनी बदौलत है। तो मुझे लगता है 30 से 40 सेकंड का समय हो गया, क्योंकि इस समय की मुझे बहुत क्योंकि मैं डिबेट के अंदर भी ना 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम किसी को देता नहीं अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस करने के लिए। तो मुझे लगता है 30-40 सेकंड हो गए। आप लोगों ने अपने दिमाग में कुछ बात सोची होगी, और क्योंकि आप यंग हैं, और जो यंग इंडिया है वो ब्लैक और व्हाइट में बिलीव करता है, वो ग्रे में बिलीव नहीं करता।
या तो आपका यस है या तो आपका नो है, कहीं बीच में इफ एंड बट नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, आपको लाइफ के अंदर एक चीज चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आप बोलोगे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बोलोगे पेरेंट्स को, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं तो फिर नहीं लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। और लाइफ के अंदर जब आप आगे बढ़ते हो, अगर ये मेंटेलिटी रखते हो कि यस और नो, मुझे लगता है आपको अधिकतर यस सुनने को मिलता है। और आपको वो ताकत रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियन यूथ है, जो इंडियन सोसाइटी है, इसको मैंने नोट करा 2013 के बाद। आप कह सकते हो एक अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, उसके बाद इस देश में एक बदलाव आता हुआ दिखा। और 2014 का जो इलेक्शन था वो उस बदलाव की बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। 2014 का इलेक्शन वो एक साधारण चुनाव नहीं था। वहां पर आप देखिए उस इलेक्शन के बाद क्या क्या चीजें बदली। इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर भी डिबेट शुरू हुई। मैं किसी को कोट करना चाहूंगा, लॉर्ड बायरन को। उन्होंने कहा था, ही हु लव्स नॉट हिज कंट्री कैन लव नथिंग, यानी जो अपने वतन से प्यार नहीं करता वो किसी चीज से प्यार नहीं करता। ये तो नेशनलिज्म की बात है। महात्मा गांधी जी को मैं कोट करता हूं, नेशनलिज्म इज लाइक वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवॉर्ड, यानी नेशनलिज्म जो है वो एक वर्च्यू की तरह है, उसके अपने रिवॉर्ड्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जो आपने पहले बात बोली थी जब आप टीवी चैनल देख रहे थे, खबर चल रही थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के बारे में, असेंबली के बारे में, एक विधायक लेजिस्लेटर सपोर्ट कर रहा था टेररिस्ट, उस सवाल पर आप कब आओगे? उसी सवाल पे मैं आता हूं। अगर आप में से किसी के पास कुछ कहना है उसके बारे में, तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, अपना जवाब दे सकता है। ये तो मैं चूज कर लूंगा। किसी है किसी के पास जवाब? मैंने पहले आपसे पूछा था सवाल, आप खड़े हुए। हाँ, आप खड़े हुए। जब हम नेशनलिज्म और जर्नलिज्म की बात करते हैं और जो मैंने पॉइंट बताया उसकी बात करते हैं, तो कुछ लिंक नजर आता है आपको? सर, जम्मू कश्मीर का तो सर वैसे भी रहता ही ऐसा जाता है, क्योंकि मेनली वहाँ पे पीओके की चक्कर से उधर, और वहाँ के ज़्यादातर जो एमएलए हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं कि उनके लिए स्पेशली फंडिंग पाकिस्तान से होती है। तो और वैसे भी सर वहाँ का अगर वो सपोर्ट करें वहाँ के एमएलए अगर टेररिस्ट को, तो कोई नई बात। ये आपने एक बैकग्राउंड बताया, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कोई लिंक नजर में आता है जर्नलिज्म, नेशनलिज्म और उस विधायक की खबर के अंदर कुछ नजर में आता है? सर, क्या नेशनलिज्म जैसे आपने भी कोट किया था लॉर्ड बायरन का, तो सर वो वहाँ पे जाता है सर उनके कि वो अपने वतन, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो हमारे कंट्री में अटैक करेगा, वो हमारे अगेंस्ट है और वो उनका साइड है, तो एक तरह से वो एंटी नेशनल। तो अगर आप न्यूज़ प्रेजेंटर होंगे तो किसकी साइड पे खड़े होंगे? सर, अपनी कंट्री की साइड पे। दैट इज द पॉइंट। तो यही नेशनलिज्म और जर्नलिज्म की बात होती है। जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैं उस टाइम पे जी में था, मैंने उस स्टोरी को बहुत क्लोजली फॉलो करा है, जब वहां नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और तब इस देश में एक नया जर्नलिज्म शुरू होता है जिसको हम कहते हैं कि हाँ, राष्ट्रवाद होना जरूरी है। अब बैठिए, जो राष्ट्रवाद होना जरूरी है, जब आप सवाल पूछते हो उनसे, उन लिबरल से जो ये कहते हैं कि तो बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी किस कगार तक जाएगी, कहां तक पहुंचेगी बोलने की आजादी? आप बोलेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका कातिल है क्या, जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको सजा दी? उसके बाद आप देखिए ये जेएनयू की जो ब्रिगेड चली, ये यहां नहीं रुका, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल, कश्मीर में नारे लगते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सबको ऐसा महसूस होता है कि एक रात के अंदर देश के लिए कुछ अच्छा करें ना करें, अगर भारत की बर्बादी के नारे लगा देंगे तो खबर तो बनी जाएगी और उसके साथ साथ हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि आप अवॉइड करके आगे निकल जाओ इतनी बड़ी स्टोरी को। आपके मन में हो सकता है कि हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दें, नॉनसेंस बात है ये, तो हमारा देश को इन लोगों के नारों से टूटने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो लोग जो झंडा पकड़ते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने का, उनको एक्सपोज करने की बारी आती है, देश को बताने की बारी आती है कि हाँ, जब वहां पर वो 4 लड़के नारे लगा रहे थे, उन चार लड़कों के नारे लगाने के बाद भी वहां पर राजनीति होती है, वहां पर लेफ्ट पार्टीज के बड़े बड़े नेता जाते हैं और उसके अलावा पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, देश की संसद में वो मामला उठता है। उस मामले को दबाया भी कैसे जा सकता है, पलट के सवाल तो ये पूछना बनता है।
और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे तब तक घबराहट नहीं होगी। मैं एग्जांपल देता हूं बाबा राम रहीम का। अब इन लोगों को जब तक आप एक्सपोज नहीं करोगे तो दूसरे के मन में डर कैसे पैदा होगा कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। 10 बाबा एक्सपोज हुए, कम से कम काउंटिंग तो थोड़ी कम होनी शुरू हुई है। और जब से ये स्टोरीज टेलीविजन पे आने लगी हैं, ये डिबेट का पॉइंट बनने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में भी, कैंपसेस में भी एक लोगों की जो कॉशन है वो जागी है कि कहीं कहीं देश के खिलाफ कुछ ना हो जाए। क्योंकि बड़ा आसान है यहां से बोल देना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तमाम चीजें हेडलाइन बनती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान के, पहले तो रक्षा मंत्री थे, प्रमोट होकर विदेश मंत्री हो गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट करा और उस ट्वीट में लिखा कि भारत अगर न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, एक बार ट्राई करके देख ले, हम बता देंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन में कितनी ताकत है। अपने मुल्क के लिए लिख रहा है, लाजमी लिख रहा है, लेकिन एक इंडिया का नेता उसके ट्वीट को लाइक कर रहा है। आप जानते हैं कौन नेता था वो? देखिए अब आपने खुद ही बताया। अब रात को जब डिबेट होगी तो हाउ कैन एनीबॉडी कैन अ इंडियन फॉरगेट वी आर जर्नलिस्ट फर्स्ट, हाउ अ इंडियन कैन साइड शशि थरूर? हमें पसंद आएगा हमारे देश पर कोई न्यूक्लियर वेपन चलाने की धमकी दे रहा है, हमें वो पसंद आनी चाहिए बात। तो इसीलिए कई बार आप देखते हैं, आप मेरी भी डिबेट्स देखते होंगे, तो कई बार आपको लगता होगा कि अननेसेसरी इतना क्यों चिल्ला रहा है यार, क्यों इतनी तेज तेज बोल रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू, व्हेन यू थिंक अबाउट योर नेशन, जब आप अपने देश को सबसे ऊपर रखते हो तब आपके मन में ये गुस्सा आता है कि मेरे देश के खिलाफ एक आदमी पाकिस्तान का तो काम करेगा, वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश का एक नेता उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा, तब बुरा लगता है। जब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता पाकिस्तान में जाकर बोलते हैं कि आपको भारत की सरकार को हटा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब नेशनलिज्म और जर्नलिज्म का काम होता है। यानी तब अपने राष्ट्रवाद पत्रकारिता के ऊपर खड़ा होते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, और मैंने इस पर बहुत डिबेट करी थी और मुझे अच्छी तरह याद है। कैप्टन गोगोई, आप सब परिचित है कैप्टन गोगोई से? वो शख्स जिसने जब कश्मीर में जवानों को थप्पड़, लाते, मुक्के मारे जा रहे थे, उस जवान को जिसके पास AK-47 भी थी, उसको मुक्के, लाते और थप्पड़ मारे जा रहे थे, वो वहां से निकल के आ रहे थे। उसके बाद कैप्टन गोगोई आते हैं और वो बहुत फेमस इंसिडेंट है ये, इसको इजराइल से भी कोई लोग बहुत लिंक करते हैं, पैलेस्टीन और इजराइल से भी लिंक करते हैं। उन्होंने जीप के आगे अपनी एक वहां के लोकल को बांध लिया कि पत्थरबाजी ना करें लोग। अगर आप इसको इंसानियत के तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा किसी भी शख्स को जो एक आम इंसान हो उसको ऐसे नहीं बांधना चाहिए था, ये तो गलत है। यही एक फर्स्ट थॉट आता है एक दिमाग में। लेकिन कैप्टन गोगोई क्या सोचते हैं? कैप्टन गोगोई सोचते हैं कि यहां से मैं उधर जाऊंगा, मेरे पे पत्थर बरसाएंगे, मैं गोली चलाऊंगा तो 50 लोग मरेंगे या 20 लोग मरेंगे, जितने भी लोग मरेंगे, तो इससे बेटर है कि मैं एक शख्स को उनके आगे बांध के जाऊं, इन लोगों की भी जान बच जाए और मुझे भी ना गोली चलानी पड़े, मेरी भी जान बच जाए। तो ये कोई गलत थॉट नहीं था, और वो उन्होंने किसी आम नागरिक को नहीं उठाया था, एक पत्थरबाज को उठाया था जो पत्थर मार रहा था। तो उसकी वजह से वहां पर उनकी भी जान बची, लोगों की भी जान बची। लेकिन हमारे यहाँ का ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमारे यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये तो इंसानियत के दायरे में नहीं है। क्या वो इंसानियत के दायरे में था जब एक जवान को जिसके पास AK-47 थी उसको कोई थप्पड़ मार रहा था? तो when you side with Captain Gogoi, that is journalism and nationalism, according to me. हो सकता है you may differ from that, और वो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप खड़े होकर मुझसे 4 सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में एक बात बोली कि आज के यूथ को ये देश बदला है,
इस देश में 2013 के बाद पिछले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस देश के अंदर अब यस और नो चाहिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चाहिए, यानी ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ग्रे नहीं चाहिए। क्योंकि ग्रे की स्कोप धीरे धीरे कम हो रही है इस मुल्क के अंदर। क्योंकि आप बार बार ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा, आज के डेट के अंदर हम सरकार से एक ही तो सवाल पूछते हैं, भाई आप पूरे मैंडेट के साथ आए, आपको ये काम करने थे, आप कर पाए नहीं कर पाए, यही सवाल पूछा जाता है ना सरकार से। तो यानी कोई सरकार का ना और हाँ ही सुनते हैं, ये नहीं सुनेंगे। आमूमन जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये बोला जाता है अब ये बहानेबाजी कर रहा है। आम लोगों की भाषा में भी शायद यही बोला जाता है कि बहानेबाजी हो रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं अपनी पूरी बातों को एग्जांपल्स इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप रिलेट कर सकें, लेटेस्ट एग्जांपल्स देकर कि व्हाट इज नेशनलिज्म एंड जर्नलिज्म। क्योंकि इस देश के अंदर राष्ट्रवाद के ऊपर ये एक नई बहस छिड़ी है। आपको भी लगता होगा टीवी स्टूडियोज के अंदर जो आदमी नेशनलिज्म की बात कर रहा है शायद किसी पार्टी के साथ किसकी साइड कर रहा है। क्यों किसी पार्टी के साथ साइड कर रहा है? उनकी बकौती नहीं है ये, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, यानी बीजेपी की बकौती नहीं है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इस देश की बकौती है। तो नेशनलिज्म हर वो आदमी फील करता है जब वो क्रिकेट स्टेडियम में अपने प्लेयर्स को खेलते हुए देखता है मैच, इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा होता है तो सर से ऊपर नीचे हो रही होती है, वो नेशनलिज्म होता है। और वो नेशनलिज्म का जज्बात जो है वो हर हिंदुस्तानी में, अ ट्रू इंडियन हैज नेशनलिज्म, हर किसी की एक्सटेंट डिफरेंट हो सकती है। एग्जांपल मैं कोट करता हूं, अभी लेटेस्ट एक आर्टिकल आया था, एक बहुत ही फेमस न्यूज पोर्टल है उसके ऊपर, और जिस आर्टिकल ने पाकिस्तान में धूम मचा। अब बोलेंगे इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन पोर्टल का आर्टिकल पाकिस्तान में धूम मचा दी, ऐसा हुआ। कुलभूषण जाधव को आप लोग जानते होंगे, कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बता दिया उस पोर्टल ने, और उस पोर्टल को अपना आर्टिकल विड्रॉ भी करना पड़ा, लेकिन इट वाज वेरी लेट। जब उन्होंने विड्रॉ करा तो डैमेज वाज डन, एंड आई बिलीव आईसीजे के नेक्स्ट हियरिंग के अंदर उस आर्टिकल को पाकिस्तान कोर्ट भी करेगा। हमने एक रिपोर्टिंग कर दी, हमने बोल दिया, हमको थोड़ी एडवर्स लाइन देनी थी, हमने बोला कि he was a raw agent. Who gave you the proof he was a raw agent? A Pakistani website doing it, we understand it. An Indian website doing it? Supporting whom? Supporting whom? Supporting Pakistan? Siding with Pakistan? They say नहीं, ये हमारा तो राइट है कुछ भी लिखने का। बिल्कुल आपका राइट है सब कुछ लिखने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखिए मुल्क के पक्ष में क्या जाता है और मुल्क के खिलाफ में क्या चला जाता है। सबका राइट है। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं मेरी बात को, मेरा राइट है लिखने का। भैया आपका राइट है, आपकी बोलने की आजादी है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी बोलने की आजादी है, हमारी लिखने की आजादी है, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर, किस कॉस्ट के ऊपर वो आजादी है? आजादी तो आपके बोलने की आपके घर में भी है, तो अपने पेरेंट्स को गलत थोड़ी बोल देते हो, माफी मांगते हैं ना बोलकर कुछ गलत। आजादी है तो अपने पेरेंट्स को भी गलत बोल लो। आपके फंडामेंटल राइट जो सब है, उस फंडामेंटल राइट में कहीं तो नहीं लिखा कि अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, उनके पैर को छुआ तो मत लीजिए। फंडामेंटल राइट आपको फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं ये बात लिखी हुई। तो दिस इज, तो जब भी आपके पास वो ताकत होगी लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, हमेशा लिखने से पहले, बोलने से पहले जरूर सोचेगा कहीं मैं अपने देश का नुकसान तो नहीं कर रहा हूं या कर रही। कई बार हो सकता है, और आप लोग ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सब इंडिपेंडेंट अपने न्यूज़पेपर्स को लेके आओगे। आप किसी ना किसी न्यूज़पेपर में, किसी ना किसी न्यूज़ चैनल के साथ, किसी ना किसी वेबसाइट के साथ, किसी ना किसी मैगजीन के साथ आप जुड़ेंगे। तो कई बार हो सकता है आपको एक स्टोरी का एंगल दिया जाए, ऐसा होता है कई बार कि इस स्टोरी के एंगल पे आप काम करिए। लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे, कई बार जब आप काम कर रहे होते हो, कई बार पॉसिबल हो पाता है, नहीं हो पाता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉस, किसके साथ आप डील कर रहे हो। पर एक बार जरूर सोचिएगा कोई भी स्टोरी करने से पहले, स्पेशली नेशनल इंटरेस्ट की,
कहीं ये देश के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा। उस पोर्टल की स्टोरी ने देश का ना चाहते हुए या चाहते हुए एक डेंट कर दिया कुलभूषण जाधव के केस में। अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आपने एक मौका दिया। हाल ही में 1 साल हो गया लगभग इस बात को, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इंडिया पे। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान में। तो जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो बड़ी सारी पॉलिटिकल बातें हुई। किसी ने बोला कि फर्जी है सर्जिकल स्ट्राइक। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने भी अपनी लाइन बोली। तो क्या हुआ कि उस दिन पाकिस्तान में ये जनाब ट्रेंड कर रहे थे। नेशनल कैपिटल के सीएम ने क्वेश्चन कर दिया कि वेदर इट वाज डन और नॉट। हम इंटरनली 50 चीजों पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इंटरनली आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो भी करिए, लेकिन जब आप आर्मी कुछ करके आई उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, तो ये देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ की थी। ये आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने दुनिया को बताया कि हाँ, हमने एक स्ट्राइक करा है क्योंकि पाकिस्तान बदमाशी करता है। द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर। और 8 देशों को इन्फॉर्म करा गया था भारत की सरकार द्वारा कि हाँ, हमने स्ट्राइक करी है, पाकिस्तान की सीमा में घुसे, हमने मारे और हम वापस आए हैं। और ये स्ट्राइक उतनी है, हम वॉर के लिए नहीं जा रहे। दिस वाज द मैसेज। और आप उसी मैसेज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज नॉट गुड। और कई बार ऐसा होता है कि एज अ जर्नलिस्ट आप कुछ ऐसी लाइन पर चल पड़ते हैं जो देश के लिए कई बार हानिकारक हो जाती है। जो मैंने पोर्टल की कुलभूषण जाधव वाली स्टोरी बताई, वो इसी का बड़ा एग्जांपल है। जब आप जेएनयू के उन लोगों को जो देश के विरोध में नारे लगाते हैं, उनको साइड करते हैं और बोलते हैं ये बोलने की आजादी है, तब आप बाकी बच्चों को भी ये बोलते हैं कि आप भी बोलिए, आपकी भी बोलने की आजादी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये लेजिटिमेट बात है इस देश में करने की। तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहां क्या बोलना है, कहां क्या लिखना है, क्योंकि देश में खराब मैसेज ना दे, खासतौर पर नेगेटिव मैसेज तो बिल्कुल ना दे। और मैं इस बात में बिलीव करता हूं, सरकार से सवाल पूछना इंटरनेशनल नहीं है। जरा सरकार से दबाकर सवाल होने चाहिए, जो जायज सवाल है उनके सरकार को जवाब भी देने चाहिए। सरकार से सवाल पूछना इंटरनेशनल नहीं। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट नौकरियां कम दे पाती है तो उस पर सवाल होना चाहिए। जीडीपी कम हो रही है तो उस पर सवाल होना चाहिए। हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, उस पॉलिसी पर सरकार का क्या विचार है, उस पर सवाल होने चाहिए। वो इंटरनेशनल नहीं, वो नेशनलिज्म के दायरे में ही आता है। और वो नेशनलिज्म के लिए बेहतर है। जब तक हम सरकारों से सवाल पूछते रहेंगे तो वो इस मुल्क के लिए बेहतर है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए बेहतर है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। नरेश अग्रवाल साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली संसद सत्र के दौरान कि कुलभूषण जाधव की फैमिली के साथ, उनकी मदर के साथ और उनकी वाइफ के साथ वही ट्रीटमेंट हुआ जो टेररिस्ट के फैमिली के साथ होना चाहिए। हमारे यहाँ भी टेररिस्ट होते तो वैसे ट्रीट करते। बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोल दोगे आप। मन आपका करा, आप सोकर उठ कर आए, आप न्यूज देखी थी नहीं देखी थी, आपने बोल दिया। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इंडियाज पार्लियामेंटेरियन, पीटीवी ने लिखा, इंडियाज पार्लियामेंटेरियन सेज कुलभूषण जाधव इज अ टेररिस्ट। अब आप कुलभूषण जाधव का हमारा मुल्क केस लड़ रहा आईसीजे में, और हम हमारे पार्लियामेंटेरियन को अगर आतंकवादी बोल रहे हैं तो ये कितना रॉन्ग मैसेज जाता है वर्ल्ड को, दुनिया को, कि भाई इंडिया लगता है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम उसको लाभ छुपाने की कोशिश कर ले। कोई भी आप बात बोली हुई कि डिजिटली इतनी स्ट्रांग हो जाती है that this flows, this flies, not flows, this flies। डोनाल्ड ट्रंप कुछ अमेरिका में करता है, आई थिंक within 10 minutes we get to know everything, within 10 minutes।
सब कुछ पता लग जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विद इन 1 मिनट तो फर्स्ट फ्लैश आ जाता है एंड विद इन 10 मिनट्स इंटायर इंफॉर्मेशन आ जाती है। दैट इज द डिफरेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और कई बार एज अ जर्नलिस्ट आपको तब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, आपको कहां साइड करना चाहिए कहां साइड नहीं करना चाहिए, या फिर आपको रिपोर्टिंग करना आपका तो काम है, बिल्कुल आपका रिपोर्टिंग करना काम है, लेकिन जब देश की तरफ आती है तो देश को साइड करना चाहिए, वहां थोड़ा बायस हो जाना चाहिए मुल्क की तरफ। आपको पता है मुल्क, कई बार हमको पता लगता है, मैं पाकिस्तानी किसी चैनल पर डिस्कशन कर रहा होता हूं, हमें पता लगता है हमारे मुल्क की गलती है, लेकिन वहां बोलेंगे थोड़ी, क्या आप बोलेंगे? चलिए अब मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, पिछले 3.5 साल में 4 साल में एक परिवर्तन जो देखा है। अब तक राष्ट्रवाद का जो विषय था ना, वो एकेडमिक चर्चा की बात थी कि हम सेमिनार में बात करते थे, नेशनलिज्म हैज टू बी लाइक दिस, नेशनलिज्म हैज टू बी लाइक दैट, लेकिन अब पब्लिक के बीच की बहस बन गया है ये। और मुझे लगता है ये स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है कि जब गली चौराहों पर राष्ट्रवाद की बात हो ना, तो मुझे लगता है कि असली राष्ट्रवाद इस मुल्क के अंदर आ रहा है, जो कि जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले नेशनलिज्म की बात करते थे, एक सेमिनार में खड़े होकर एक सज्जन ने भाषण दे दिया, उसको हमने समझ लिया कि ये राष्ट्रवाद है। और जर्नलिज्म में एक थ्योरी बताई जाती थी कि ऐसा है कि यू हैव टू डू वेरी फेयर रिपोर्टिंग, फेयर रिपोर्टिंग के अलावा कुछ नहीं, यू हैव टू रिपोर्ट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू गेट टू द वर्क, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड दैट, ट्रस्ट मी, एंड यू विल फील व्हेन यू विल एंटर द, किसी भी जगह आप एंटर करोगे, यू विल फील दैट, एंड आई विल से इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज नॉट अ एग्जामिनेशन फॉर यू, इट इज लाइक अ मैजिक, इट इज लाइक अ मैजिक। व्हेन यू एंटर एनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां के ना सेंस को पकड़िएगा। वहां पर कई लोग आप जब स्टोरी लिख के लाएंगे तो बोलेंगे कि बहुत बेकार लिखी है आपको, मुझे नहीं लगता आपको स्टोरी भी लिखनी आती है, ऐसा होगा। डोंट फील डिसहार्टेंड। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, कई बार एक ऐसा होता है कि कई लोग, दुनिया में हर आदमी आपको आगे नहीं बढ़ाता, कोई हर आदमी आपको आगे नहीं बढ़ाता, आपके पेरेंट्स नहीं है, आपको 8 गिराने की कोशिश करेंगे, एक ही उठाने की कोशिश करेगा, तो उस एक को पहचान लीजिएगा कौन है। तो मुझे लगता है that will help you। ये मेरे सब्जेक्ट के बियॉन्ड था, तब भी मैंने इस बात को बोला। और अब आप अपने पूरे जो भी सवाल हो उसको बेबाकी के साथ पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बड़े कम हाथ खड़े हो रहे हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर, इंडिया कुलभूषण जाधव को मानता है, ही इज अ नेवल ऑफिसर, तो बोला गया है कि वो स्पाई नहीं है, ठीक है, और जो उनकी मदर और वाइफ उनसे मिलने गई तो उनके साथ जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। तो सर यही सेम चीज़ जो हम पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने बोली है कि जो उनके साथ बिहेवियर किया गया उनकी मदर और वाइफ के साथ वो बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू वो जर्नलिस्ट नेशनलिस्ट है या एंटी नेशनलिस्ट है? क्या पाकिस्तान के लिए मैं बोल रही हूँ, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, उसने ये बोला है कि कुलभूषण जाधव के साथ बहुत गलत हुआ है, उनकी मदर और वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बिहेवियर। तो आपके हिसाब से वो जर्नलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट है या नेशनलिस्ट है? देखिए, जब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ये बात बोली है, अगर मैं अपने लिहाज से देखूंगा तो मैं तो बोलूंगा कि उसने तो बिल्कुल सच बोला है। सर, दिस इज द सेम थिंग। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग। तो उसने तो बिल्कुल सच बोला है, जो गलत हुआ वो गलत हुआ। आई थिंक जो पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की मदर और वाइफ के साथ करा, वो वाकई बहुत गलत था, वो किसी भी तरीके से गलत था। मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज आप किसी भी मुल्क में करोगे तो उस पर सवाल खड़े होंगे। उस वहां पर नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट का और एंटी नेशनल का पॉइंट नहीं आता, वहां पर सच बताने का पॉइंट आता है। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं एक और इसको एग्जांपल देके बात बताता हूं। सपोज
हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी को हम पकड़ते हैं और उसको सिगरेट बट से जलाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग होती है, तो दैट इज नॉट एन एंटी नेशनल पॉइंट. आई बिलीव दैट इज अ स्टोरी व्हिच हैज बीन डन, व्हिच इज रिपोर्टेड ऑन फैक्ट्स. दैट इज नॉट एंटी नेशनल, एंड बिकॉज उसकी कैटेगरी डिफरेंट है. तो यू कांट से दैट इज अ नेशनल और एंटी नेशनल स्टोरी. और देखो कई चीजों में स्टैंड लेना होता है आपको. सपोज फॉर एग्जांपल हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए, हाफिज सईद के को अधिकतर पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको सोशल लीडर बोलते हैं, बिकॉज दे सपोर्ट हिम, बिकॉज दे सपोर्ट देयर कॉज, हिज कॉज, जो भी वो कॉज करता है हाफिज सईद. अब इंडिया के अंदर हम हाफिज सईद को सोशल लीडर बोलने लग जाएंगे, तो आई थिंक दैट इज एंटी नेशनल, बिकॉज हाफिज सईद इज वर्किंग अगेंस्ट इंडिया. दैट इज माय पॉइंट. सर आपने बताया एक पॉलिटिशियन ने कोट किया कि कुलभूषण जाधव स्पाई है, तो वो गलत बोल रहे हैं. तो अगर ये चीज स्पाई नहीं, द टेररिस्ट बोला. ओके, ही इज अ टेररिस्ट उन्होंने बोल दिया, और आपके हिसाब से वो गलत है. और ये चीज़ अगर पॉलिटिशियन का दिखाया जाएगा यही सेम एवी पाकिस्तान में, तो आप उस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करेंगे एज अ नेशनलिस्ट या नहीं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये नहीं बोला ये टेररिस्ट है. उन्होंने एग्जांपल दिया कि हर टेररिस्ट के साथ ही ऐसे ही बिहेव होता है, तो इसलिए ये टेररिस्ट, अगर किसी टेररिस्ट के साथ ऐसा बिहेव हो भी रहा है तो हमें पता नहीं. तो हम एज अ इंडिया हम आईसीजे में कह रहे हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन हु वाज अबडक्टेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम ईरान, और उसको पाकिस्तान ने बोला कि ये स्पाई. हमारा स्टैंड, इंडिया का स्टैंड ये है. अमीश देवगन का स्टैंड नहीं है, नरेश अग्रवाल का स्टैंड नहीं है, ये आपका स्टैंड नहीं है, इंडिया का स्टैंड है. तो मुझे लगता है कि एज अ पार्लियामेंटेरियन तो आपको इंडिया के स्टैंड पे खड़ा होना पड़ेगा ना. आप कैसे बोल सकते हो कि दैट वो हर टेररिस्ट के साथ ऐसे ही बिहेव होता है, इसलिए उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही बिहेव हो रहा है. दैट वाज माय पॉइंट. सर माय क्वेश्चन टू यू इज, सर जैसे जेएनयू का इंसिडेंट हुआ उस पर नारे लग रहे हैं कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा. तो सर स्टूडेंट्स में जहर आ कहाँ से रहा है? सर हम भी स्टूडेंट हैं, मगर हमारा तो मेन मोटिव ये है कि हमारा इंडिया आगे जाए, मगर सर बाहर के स्टूडेंट्स में ये जहर कहाँ से आ रहा है? बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका. आई थिंक इसका सवाल इसका जवाब जो है वो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज में ढूंढने से मिल जाएगा. देखिए कई विचारधाराएं होती हैं और इस मुल्क के अंदर सब विचारधाराओं को भूलने की आज़ादी है, अपने लिटरेचर बनाने की आज़ादी है. अब सपोज मैं यहाँ खड़े होकर 15-20 मिनट जो विषय मुझे मिला उसके विपरीत बोलता कि ये सूडो नेशनलिज्म जो है इसको एक्सपोज करना चाहिए, उसके तर्क में मैं 3-4 एग्जांपल देता, तो आपको लगता है ये बात तो सही कह रहे हैं. मुझे लगता है कि हाइपर नेशनलिज्म इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. तो आई थिंक उस विचारधारा को भी सपोर्ट मिलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से उनके मन में ऐसा विचार आया कि सुप्रीम कोर्ट भी कातिल हो सकता है. सपोज मैं भी लेटेस्ट एग्जांपल देखता हूँ. हमारे इस देश के अंदर एक नई प्रथा चली है, हालांकि पहले भी थी लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हो रही है, कि इस देश को जातियों में बांट दो पूरी तरह से. आई थिंक अगर मैं किसी पर्टिकुलर जाति का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज अगर आप ए को बी से लड़ाओगे और बी को सी से लड़ाओगे तो अल्टीमेटली तो इंडिया ही गर्त में जाएगा और कुछ नहीं होगा. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए किसी को वोट मिल जाए, किसी को वोट ना मिले. दैट कैन बी अ वन इलेक्शन, किसी के लिए जॉब हो सकती है, बट दिस विल इफेक्ट इंडिया लाइक एनीथिंग. दिस विल इफेक्ट इंडिया लाइक एनीथिंग, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, हमारे देश के अंदर 80% मेजॉरिटी इज हिंदूज. तो जातियों में तो ऑलरेडी वो समाज थोड़ा बटा हुआ है. अगर उसमें कोई और जहर डालने की कोशिश करेगा तो बहुत खराब सिचुएशन है. गुड आफ्टरनून सर. सर अभी कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव की Z+ सिक्योरिटी से Z सिक्योरिटी कर दी गई. जी. तब उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने एक स्टेटमेंट दिया, मीडिया से बोला कि हम मोदी जी की खाल उधड़वा देंगे. और अभी जैसा आपने बताया कि शशि थरूर एक पाकिस्तान के ट्वीट को लाइक करते हैं,
और एक बताया समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल कुछ ऐसा लिखते हैं कुलभूषण यादव के लिए। क्या सर इनको कभी नेशनलिज्म की क्लास नहीं मिली या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक आपने लालू के बेटे का बताया, उनके बड़े बेटे ने ये बात बोली थी, मैं मोदी जी की खाली सुना दूंगा। मुझे लगता है पॉलिटिकली उन्होंने बोला था, वो कहना कुछ और चाह रहे थे। और लालू यादव उसके बाद हमारे कार्यक्रम में थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने बोला कि वो थोड़ा यंग है, थोड़ा ज्यादा बोल गया। तो दैट इज द लालू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। आई थिंक उन्होंने जो बोला वो एंटी नेशनल तो नहीं था, उन्होंने थोड़ी बदजुबानी कर दी जो कि तमाम नेता कर देते हैं। साक्षी महाराज भी बोल देते हैं, और साध्वी निरंजना ने तो रामजादे और हरामजादे की बात बोल दी थी। मुझे लगता है ये बदजुबानी है, ये एंटी नेशनल नेशनलिज्म तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी एक बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने तो कह रहे हर देश में जवान तो मरते रहते हैं, इसमें फर्क क्या पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं जवानों का अपमान है, वो ज्यादा खराब है। ये जो मुझे लगता है लालू के बेटे ने बोला, ये बदजुबानी है, ये कि आपको बात करने की तमीज ना होना, कुछ भी बोल। लालू जी कह रहे हैं कि वो यंग है, बदजुबानी कर रहे, वो सर मंत्री पद पर रह चुके हैं। कोई आपकी मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसको हम नेशनल और इंटर नेशनलिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जहां तक आपने नरेश अग्रवाल की बात करी, जहां तक आपने शशि थरूर की बात करी, हाँ इसके अंदर अगर मैं प्रोग्राम करूंगा तो आई हैव टू स्पीक ट्रुथ। भाई सच क्या है? ख्वाजा आसिफ के ट्वीट को न्यूक्लियर हमला करेगा वो देश को, उस ट्वीट को आप लाइक कर रहे हो, आप चाहते हो क्या हो जाए भारत के ऊपर? चाहते हो क्या भाई? या तो आपने गुडविल में कर दिया, ऐसी क्या गुडविल भैया जो अपने देश को निस्तेनाबूद करने की बात करे। सर जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसमें एक मेन फैक्टर होता है आर्मी की रेस्पेक्ट करें, लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग अपोजिशन के कुछ नेता हैं जो आर्मी चीफ के लिए कमेंट करने लग गए हैं। कोई गुंडा कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो सर इसमें हमारी मीडिया का क्या रोल होना चाहिए जिससे उन नेताओं को हम रोक सकें आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ बोलने से, जिससे जो हमारी आर्मी है उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरे नहीं, रेस्पेक्ट रहे। बिल्कुल, आपने ये संदीप दीक्षित का एग्जाम्पल कोट करा, जिन्होंने बोला था कि हमारे आर्मी चीफ सरहद के गुंडे की तरह धमकी देते हैं। अब बिपिन रावत, I have met him twice thrice, तो I can say he is a man of his words, जो कि उस रेजिमेंट से आते हैं जिस रेजिमेंट ने अंदर घुस के दुश्मनों पर वार करा, और उनकी नीति थोड़ी एग्रेसिव है, और कई बार वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वाकई इंपैक्ट करती है। अब कल उन्होंने आर्मी डे पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी और बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि आप हमारी पेशेंस का टेस्ट ना लें, हमें सुधारना भी आता है, और अगर आप सुधरेंगे नहीं तो हम आपको सुधरवा देंगे। आप अब संदीप दीक्षित साहब को आज भी लग सकता है कि उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में बोला। अब भारत के आर्मी का चीफ, जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आर्मी का चीफ है, अब वो दबंग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा जनाब? तो मुझे लगता है कि ये बोलना अपने आप में देश के विरोध की बात है। जब आप बोलते हो अपनी आर्मी चीफ को डिमीन करते हुए, उनको नीचा दिखाते हुए कि ये तो सड़क के गुंडे की तरह बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि देन इट इज साइडिंग विद द पीपल who don't want him to say this thing and who don't want him to say these things। पाकिस्तान में लोग हैं, ISI है, बाकी लोग हैं, अलगाववादी हैं कश्मीर के अंदर जो नहीं चाहते ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है, क्योंकि जो अलगाववादी हैं वो इस बात का एजेंडा बनाकर फिर वहां पे सेमिनार करते हैं। देखिए, इनके तो अपने नेता बोलते हैं कि इनके जो आर्मी चीफ है वो सड़क के गुंडे की तरह बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज द पॉइंट। तभी मैंने आज जब मैं शुरू में आया, मैंने एक एग्जांपल को कोट करा कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट असेंबली में कर रहे हो, ये मैसेज बहुत खराब दे रहा है, ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री खराब दे रहा है। सर जैसे कि आपने बात करी नेशनलिज्म की, और आपने बोला कि वक्त आ चुका है कि हमें आंसर देना चाहिए यस और नो में। सर मुझे पूछना है कि जैसे नेशनल एंथम रिसाइट करना इन थिएटर्स बिफोर द मूवी बनाया गया था, तो आपको इस पे क्या लगता है, ये सही है या गलत है?
देखिए आप मेरी निजी राय पूछेंगे बिकॉज ऑफ कोर्ट का डिसीजन भी इस पे आ चुका है, तो आई विल तो से कि इसमें कोई किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर नेशनल एंथम हम कहीं पर गा देंगे। शायद इस मुल्क के अंदर बोलने की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना है कि आप लोगों में से केंद्रीय विद्यालयों में कौन कौन पढ़ा है? तो वहाँ पे एक प्रार्थना होती थी, जिस प्रार्थना के ऊपर भी अब इस मुल्क में सवाल खड़े हो गए कि वो एक धर्म का प्रचार करती है। तो अब हम किस एक्सटेंट तक जाएंगे? और मेरी डिबेट के अंदर एक सज्जन थे जिन्होंने बोल दिया कि अगर हम भवनों के निर्माण को की पूजा करेंगे और वहां नारियल फोड़ेंगे, ये भी एक धर्म का प्रचार है। तो आई बिलीव हम किस हद तक जाना चाहते हैं। चलिए नेशनल एंथम पर अधिकतर लोगों की एक राय हो सकती है, लेकिन अब प्रार्थना के ऊपर वो प्रार्थना जो 52 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में चल रही है, 12 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन बच्चों को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन एक एनजीओ को लगा इस पे पीआईएल दाखिल करनी चाहिए। उसने पीआईएल दाखिल करी और 6वीं और 5वीं क्लास के बच्चों के अंदर भी हिंदू मुसलमान की भावना पैदा कर। डू यू थिंक दैट इज नेशनलिज्म? बट इस देश का राइट है, वो करेंगे। Now this is the thing where we need to stop. We don't know. हमारा एक अधिकार है, उस अधिकार में हम कुछ भी पूछेंगे। अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि आदमी जब फिल्म देखने जाता है, मैं भी जाता हूँ, अलग मूड में होता है, कई बार वो मौज और मस्ती के मूड में होता है, तो वो चाहता है कि अब क्या मैं इन सब चीजों में पढ़ूं। लेकिन अगर उस 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर 52 सेकंड खड़े होने पर इतना बवाल हो सकता है, ये बोला जा सकता है हम क्यों बोले। अभी एप्पल का फोन अगर सस्ता मिलेगा ना, तो और स्टारबक्स की कॉफी 100 रुपए की मिलती है, तो वहां हजार लोग लाइन पे खड़े रहते हैं, 4 घंटे लाइन पे खड़े रहते हैं। वी नीड टू डिसाइड एज नेशन व्हाट वी वांट टू डू। और आप यूथ है, आपको डिसाइड करना है। आप यूथ है, आपको डिसाइड करना है कि ब्लैक और व्हाइट क्या चाहिए आपको। यू नो इट, आपको क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई शंका होगी, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होगा। कंफ्यूजन होगा कुछ जगह पर, इसमें कोई तो राय नहीं है, सबके मन में होता है, होना भी चाहिए कंफ्यूजन कई जगह पर, लेकिन आपके मन में ये क्लैरिटी जरूर होगी कि आपको क्या चाहिए। ओके कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एक सोल्जर महाराष्ट्र का, उन्होंने सुसाइड की। जब ये बात आई थी कि आर्मी में मतलब ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, खाना बुरा मिलता है, तो मीडिया ने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मतलब नेशनल टीवी पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो क्या इसमें एक जर्नलिज्म और नेशनलिज्म में कंफ्यूज नहीं होगा? बाहर भी ये चीज़ दिखाई जा रही है कि नहीं, कोई नहीं। देखिए अब हम हर चीज कोई उसके साथ लिंक करेंगे तो ठीक है। ये तो रिपोर्टिंग है ना। आपके सामने एक स्टोरी है जिसमें एक जवान कह रहा है कि मुझे दाल में पानी ज्यादा मिलता है, मुझे सब्जी अच्छी नहीं मिलती, मुझे रोटी कच्ची मिलती है, उसका राइट है, उसको मिले भाई। तो वो स्टोरी को कवर करना मुझे लगता है ये सबसे बड़ा नेशनलिज्म है। उसमें कुछ एंटी नेशनल नहीं है, वो करनी चाहिए स्टोरी। अरे इस मुल्क के अंदर वो जवान जो आपकी रक्षा करता है, वो भूखा सोए 12 हिंदुस्तानी, ये कहाँ का दस्तूर हुआ। सरकारों को अगर कहीं पर ये गड़बड़ है तो सरकार को इंश्योर करना है, डिफेंस मिनिस्ट्री को इंश्योर करना है। आप जिस जवान की बात कर रही हैं वो शायद बीएसएफ का जवान था, उस होम मिनिस्ट्री को इंश्योर करना है कि उसको जवान को खाना ठीक मिले। ये बिल्कुल एंटी नेशनल नहीं है, ये स्टोरी है और इस स्टोरी को बहुत बड़े ढंग से चलाना चाहिए। दिस इज द स्टोरी फॉर अ वीक, नॉट फॉर अ डे। और जब तक वो कैंपेन पूरा नहीं होना चाहिए तब तक वो तमाम चीजें दुरुस्त ना हो जाए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं है। ये बातें कुछ सिलेक्टिव लोग आज के युग में आप लोगों में के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इसको दूर करिए। सरकार से सवाल पूछना आपका मौलिक अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, इट इज योर वेरी मच राइट टू क्वेश्चन प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे, व्हिचएवर गवर्नमेंट इज देयर। चाहे और देखिए क्यों नहीं हुआ, सरकारों से सवाल पूछे गए। तहलका के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से सवाल पूछा गया और मैं तहलका के अंदर
मुझे लगता है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कॉर्नर किया गया, शायद इतिहास में कोई सरकार कॉर्नर हुई हो। सवाल पूछना लाजमी था। जब भैया आपका प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण कैमरा में पैसे लेते हुए पकड़ा जा रहा है, अब तो बंगारू लक्ष्मण साहब नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी सरकार है केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, यूपीए के मिनिस्टर अश्विनी कुमार सीबीआई का एफिडेविट वेट करते हुए पकड़े गए, उनको रिजाइन देना पड़ा। यूपीए से 2G पर, कोल पर, CWG पर सवाल पूछने लाजमी थे, जरूरी था पूछना। लेकिन सर मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन किया था इसी चीज पर, तहलका पे आई डोंट नो सर, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा हुए थे कि एक्चुअली में ट्रीटमेंट गलत हो रहा है या नहीं। लेकिन बाद में तो आर्मी वालों के लिए हमने आवाज उठाई और आर्मी वालों ने ही मीडिया को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया। आप दो स्टोरीज को मिक्स कर रहे हैं। एक बार ही तो ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में ऐसा था जिसको पूरे बीएसएफ के साथ लिंक कर दिया गया था। वहां बीएसएफ ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि हमारी एक रेजिमेंट में प्रॉब्लम है, पूरे सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज आप लिंक कर रही हैं कि फिर सवाल खड़ा हुआ था कि आर्मी में कैसा खाना मिलता है, तो वहां पर कुछ कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ठीक थी। मतलब दैट वाज द स्टोरी अबाउट इट। बट जहां पर भी खराब थी वहां तो राइट है सवाल पूछने का, मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ऐसा जैसे पहले पद्मावत रिलीज हुई पर अब वो पद्मावत हो गया, तो सर कर्णी सेना ने काफी धमकियां दी कि दीपिका पादुकोण को उनकी नाक काटी जाएगी और संजय लीला भंसाली का सर धड़ से अलग करके जाएगा। तो क्या आपको लगता है एंटी नेशनलिज्म यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रहा है या काफी गलत मैसेज जा रहा है पूरी कंट्री में इसके रिलेटेड? बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी मूवी से मतलब इतनी ज्यादा भावनाएं किसी की कैसे आदत हो सकती हैं। फिक्शनल मूवी है वो, आई बिलीव, और उसको हमारे देश के मुख्यमंत्रियों ने, वैसे तो हमारे यहाँ पर सेंसर बोर्ड है, ये तो सीएम सेंसर बोर्ड बना लिया है, सब मुख्यमंत्री बोल देते हैं फिल्म देखे बिना उसको आप उस मूवी को आप बैन कर देते हैं। अरे इस मुल्क के अंदर महात्मा गांधी की हत्या करी नाथूराम गोडसे ने, उसका मंदिर बना दिया, तब महात्मा गांधी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर एक पद्मावती बनने से क्या तूफान खड़ा हो जाएगा। अब दिस इज जब हमारे जो नेता है वो सरेंडर कर देते हैं वोट बैंक से, क्योंकि वो राजपूत और ठाकुर समुदाय को इससे आहत होता है, तो इसलिए हम ये मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट आई फील रियली सॉरी फॉर इट, एंड मुझे लगता है कि गलत है ये करना, बिकॉज वो मूवी क्या बनी है, क्या है, उसको आज तक तो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक तो पद्मावती को कोई इतिहास में बिल्कुल उनका बड़ा नाम है, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था जितना आप लोग जानते हैं। They should be thankful to them rather than before watching a movie questioning it. I think वो भारत के लिए खराब मैसेज डिपिक्ट करता है, which is not. I think time भी हो गया। Last question. रिलीजन जो है नेशनलिज्म एक बड़े लेवल पे, रिलीजन एक छोटे लेवल पे है, दोनों इक्वली है। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनलिज्म बड़े लेवल पे, रिलीजन मतलब रिलीजन नेशनलिज्म एक रिलीजन नहीं हो गया, एक सेक्शन से एक बड़े लेवल। कैसे नेशनलिज्म कैसे रिलीजन हो गया? लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानियत जा रही है। कैसे, मतलब मैं आपका सवाल ही नहीं समझ आ रहा। नेशनलिज्म कैसे रिलीजन हो गया? लोग मर रहे हैं, जाने जा रही है, मतलब कोई एग्जांपल बताइए। रिलीजन मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मुसलमान हिंदू लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं कहाँ लड़ रहे हैं? ऐसे चाइना और हम भी लड़ रहे हैं। नहीं, पर मुसलमान और हिंदू इस देश में कहाँ लड़ रहे हैं बताइए ना। आई थिंक आप एक स्पेशल केस की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई लड़ाई हो रही है, उसमें तो कोर्ट पे केस चल रहा है। अब उस कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो दोनों धर्मों को मानना पड़ेगा, वो फॉर आए या अगेंस्ट आए। ये तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि आपको सब डिसीजन मानने पड़ेंगे। इंसानियत को वो कर रहे हैं ना, इंसानियत ही हो रही है, इंसानियत का हो रहा है। कैसे इंसानियत का नुकसान हो रहा है? मतलब मेरे को आप एक कोई एग्जांपल दीजिए। साइंटिफिकली एक तरह से इंसानियत के नुकसान है। जैसे आपने कहा न्यूक्लियर वेपन आपने बनाया, लेकिन वो नहीं हुआ। एक बात बताइए, अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना रखा है, हम इंसानियत के चलते न्यूक्लियर वेपन ना बनाए तो क्या करें फिर? पाकिस्तान की तेरी धमकी सहे। आपने 1962 में जब हम चाइना से लड़ाई लड़े थे,
तो हम तो शांति प्रिय देश थे, अब वो हमारे को मार के चला गया, क्या करें, उसी नीति पे चलते रहे। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन बनाना कोई अमानवीय नहीं, अपनी रक्षा करना कोई अमानवीय नहीं है, हमें पूरा अधिकार है और अब करना चाहिए। अब किम जोंग नहीं बनना चाहिए बस। एक आप लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जैसे कि आपने कहा था कि जो भी आर्मी के ऊपर जो भी बुरा सब कुछ किया जाता है उस समय कुछ भी ह्यूमन राइट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोलते, बट अगर आर्मी अपनी सेफ्टी के लिए दोबारा उन पर अटैक करती है तो सारे ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो सर ये सिनेरियो हम कैसे चेंज कर सकते हैं एज अ जर्नलिस्ट कि ये जो ह्यूमन राइट वाले हैं वो आर्मी की साइड पे कभी तो बोल रहे हैं, तो ये सिनेरियो कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये सिनेरियो कैसे बदल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई सिनेरियो बहुत जल्दी बदलता है, टाइम लगता है। देयर आर हर चीज के कुछ साल होते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन वालों को मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में तो ये पता लग गया कि हिंदुस्तान के अंदर अब उन पर सवाल खड़े होने शुरू हुए। तो पिछले कुछ टाइम से पहले वो 10 चीजों में बोलते थे, 5 में ही बोलते हैं और 2 में तो जायज बोलते हैं, अभी भी 3 में कई बार नाजायज बोल देते होंगे, तो मुझे जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है डिफरेंस तो आया है उस चीज के अंदर, और मुझे लगता है समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। तो दैट विल टेक सम टाइम, आई बिलीव मोर 10-15 years 20 years, दैट इज द पॉइंट। और मुझे लगता है कि मैंने काफी समय ले लिया और अपने जो गिवन टाइम था उससे 10-15 मिनट फालतू ही ले लिए होंगे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगी होगी और कितनी खराब लगी होगी, और आप आज शाम को जब अपने दोस्तों के साथ कॉफी या चाय पर बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे तो आपस में डिस्कस जरूर करेंगे यार ये अमीश देवगन आज क्या बोल के गया है। लेकिन जो मैंने एक बात बोली है उस पर जरूर आप विचार करना। थिंक फॉर योर कंट्री फर्स्ट जब भी आप जर्नलिज्म करने जाएंगे, जहां पे भी करने जाएंगे। थैंक यू सो मच। For establishing a balanced relationship between nationalism and journalism, and it was indeed interesting to hear you. Now, to express our gratitude, I request Dr. Parul Mehra, Head of the Department of the Second Shift, to bring this occasion to its formal end. Honorable Chief Guest, Mr. Amish Devgan ji, Advisor and Mentor of our department, Professor Ambrish Saxena ji, Professor Sushmita Bala, my dear colleagues and dear students, very good afternoon to all of you. It is my distinct honor and privilege to be given an opportunity to deliver a vote of thanks today. On behalf of our institution, Delhi Metropolitan Education, I express our profound and most sincere gratitude to Shri Amish Devgan ji for honoring our invitation. Mr. Amish Devgan ji has brought us so close to journalism and nationalism today that I believe we have all profited from his wealth of practical awareness and knowledge. It was so educative and enlightening lecture, sir. I think, the knowledge that sir has shared with us, it has filled our semi-filled pots of minds with so many facts and figures and examples today. I would really like to thank you, sir, for sparing your precious time and honoring this event. Sir has also bridged the gap of the theoretical and practical knowledge so well, and sir has ignited the lamp of patriotism once again today among all of us, isn't it? Yeah. I would also like to thank Professor Ambrish Saxena ji, who is a source of motivation and inspiration for all of us to work hard, and I really want to thank Saxena sir for giving us this opportunity to meet Devgan sir in person, and it is our opportunity to have seen him live and listening him live today. Otherwise, we all have seen him on television screen. I would like to also thank Professor Bala, who works so hard in foreground and background and making all the activities always successful like this. My dear colleagues and my dear students, thank you all for attending this program of BG Verghese lecture series. I request you all to kindly stand up for the national anthem now. Thank you.
शुभ आशीष मांगे